everyone, welcome back to my channel. First of all, a big thank you for subscribing and joining my YouTube family. And last video में मैं कह रही थी कि 2K subscriber हुआ है and now it's 10K family. I can't believe this. I know most of you people have joined me through my birthday dress reveal shorts, जिसपे काफी कुछ discussion चल रहा है about my dress and I got around 6 million views. So I just wanted to give my thought process on the comments which is coming. I'm not going to talk about the personal hate comment and about this dress, क्योंकि I know कि फैशन इंडस्ट्री का अगर मजाक उड़ाने जाए तो लोग रिप जीन्स को भी बोल सकते हैं कि पैसा देके भी फटा हुआ जीन्स खरीदते हो एंड बहुत सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया जा सकता है. सो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड सबके प्रोस्पेक्टिव अलग होते हैं फैशन इंडस्ट्री को लेके. गोइंग टू शेयर माई थॉट प्रोसेस ऑन दोज कॉमेंट्स जो इन जनरल लड़की को सुनना पड़ता है एंड अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी. एंड also I'm going to create this look with you all in natural lighting. अभी मैं artificial lighting use की हूँ because I started shooting at 3 and अभी जाके 5 बज रहे हैं. So natural lighting जा चुकी है. So you will see the makeup in the natural lighting as well. All the things I have spoken in this video is on point and you are going to love it. So before starting, let me give you my brief intro. Hi, I'm Manjari Sinha and I'm from Bihar and I love creating content on fashion, beauty and lifestyle. So you are going to enjoy these kind of content on my channel. So if you haven't subscribed, don't forget to subscribe and watch the full video. So let's get started with the makeup and all the talks. I'm going to start with the skincare and सारा चीज product का link जो भी है description box में होगा. So I'm not talking about the products in this video. So I'm going to start with a very positive and supportive comment and also end the video with all the positive comments. So Rinki commented, you are looking so pretty. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Love from Assam, lots of love from Bihar from my side. So yeah, that is very true कि लोगों का opinion होता है and वो तो कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ. So we should not think about it, but some problem I wanted to address it. That's why I'm making this video. Oh, so fresh. Since मेरे comment में सब लड़की के कपड़े के बारे में बहुत discussion करना चाहते हैं, उसको ऐसे पहनना चाहिए था, उसको ये पहनना चाहिए था, उसको वहाँ नहीं पहनना चाहिए था. So just let me make it very clear that every independent and every educated girl, education doesn't mean कि कितना पढ़ाई किया है उसने. It shows कि आप कैसे बात करते हो, आपके behavior में दिख जाता है education. Even a person who is not educated that much, who doesn't hold that much of degree, but still they can talk like educated and they can behave like that. So it's not about कि डिग्री के बारे में मैं वो बोल रही हूँ. So every educated and independent girl know कि उसको कहाँ पे क्या पहनना चाहिए. ओके, हर प्लेस का एक डेकोरम होता है. अगर मैं मंदिर में जा रही हूँ तो obviously I'll wear something ethnic because I like it. कुछ लोगों को जीन्स टॉप पहनना पसंद है. So everyone knows कि मंदिर में किस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं. So if I'm going to college तो मुझे पता है कि कॉलेज में मुझे किस टाइप का कपड़ा पहनना है. या फिर मैं कहीं भी जाऊँ, आई नो कि उस जगह का क्या डिमांड है. लड़की जब आउटफिट सोचती है ना, उसके दिमाग में बहुत कुछ होता है अबाउट द सेफ्टी, कि कैसा सिचुएशन है, क्या है नहीं है. आई होप यू कैन रिलेट विद दिस बिकॉज दैट इज़ वेरी कॉमन. अगर हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ वो सेफ है या नहीं. अगर हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा फ्री हो सकते हैं, अपने चॉइस का पहन सकते हैं. अगर हम लोग अकेले जा रहे हैं तो आई ड्रेस अप लाइक दैट. लाइक अभी मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा आपने कि मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी. सो आई वॉज वेयरिंग कुर्ती एंड अ वेरी कंफर्टेबल क्लोथ विच इज़ सुटेबल फॉर दैट ट्रैवल. सो आई नो कि मुझे कहाँ पे क्या पहनना है. और मैं ये ड्रेस क्लब पहन के गई थी एंड आई थिंक फॉर अ क्लब इट इज़ अप्रोप्रिएट. मैं ये ड्रेस पहन के कभी भी मंदिर या कॉलेज या फिर कोई ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लोगों को समझना कि हमें पता है कि कौन सा ड्रेस कहाँ पे पहनना है हमें. सो दे आर जस्ट जजिंग मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्रेस एंड दे आर नॉट थिंकिंग कि ये ड्रेस मैं कहाँ पहन रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इट वॉज माई बर्थडे. कमेंट ये आ रहा था कि आप अपने इंडियन कल्चर को भूल गए हो एंड यू जस्ट डू इट टू अट्रैक्ट बॉयज. बनारसी साड़ी पहन लेते या फिर आप इंडियन क्लोथ्स पहन सकते थे, एथनिक पहन सकते थे. सो गाइज लेट मी टेल यू कि आई लव एथनिक क्लोथ्स, आई लव टू वेयर इट, बट ऑब्वियसली साड़ी पहन के मैं क्लब नहीं जाऊंगी. और जो लोग कह रहे हैं कि मैं मंदिर क्यों नहीं गई अपने बर्थडे पे, 8 सेकंड के वीडियो पे कैसे जज कर सकते हो कि कौन कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है. बर्थडे से आई थिंक 10-15 दिन पहले मेरा प्लेसमेंट हुआ था एंड प्लेसमेंट के एक सप्ताह बाद, मतलब बर्थडे के एक सप्ताह पहले ही मैं मंदिर गई थी फॉर दैट, कि बर्थडे के लिए भी एंड प्लेसमेंट के लिए भी मैं मंदिर गई थी. एंड उसका मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाला था. लोगों को लगता है कि जो वेस्टर्न कपड़े
पहन रही है वो अपने कल्चर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है. इट्स नॉट ट्रू. अगर मैं वेस्टर्न कपड़ा पहन रही हूँ तो मेरा थॉट प्रोसेस है ना सब कुछ वेस्टर्न है. नो, आई लाइक एंड आई एम पैशनेट अबाउट माई ड्रेसिंग सेंस एंड एवरीथिंग एंड आई लव एक्सप्लोरिंग थिंग्स. लाइक मुझे डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहनना पसंद है. दैट इज माई चॉइस एंड आई हैव द फ्रीडम टू चूज वॉट एवर आई वॉन्ट टू वेयर. आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विथ थिंग्स. दैट हैपन्स विथ अदर कंट्री एज वेल. लाइक वेस्टर्न कल्चर में भी बहुत लोग आजकल इंडियन वेयर पहन रहे हैं एंड दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि बचपन से वो लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते आए हैं. सो उनको इंडियन कल्चर न्यू लगता है एंड अट्रैक्टिव लगता है. सो दे ट्राई इट, दे एक्सप्लोर इट जस्ट द वे वी आर एक्सप्लोरिंग देयर कल्चर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना कल्चर भूल जाएंगे या फिर हम अपना कल्चर भूल जाते हैं. ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड वॉट एवर फील्स कंफर्टेबल वी डू दैट एंड एवरीवन हैव द चॉइस टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. वी लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू डिजाइन एंड न्यू ड्रेस एंड वो लोग भी हम लोग के कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं. वो लोग भी देख रहे हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कंफर्टेबल लग रहा है. अकॉर्डिंग टू दैट दे आर चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल बट कीपिंग आवर कल्चर एंड एवरीथिंग इंटैक्ट. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको कैसे सेलिब्रेट करना है. मुझे क्लास 10th में बिल्कुल सेलिब्रेट करने का मन नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं किया था. इवन केक भी कट नहीं किया था क्योंकि उस साल मुझे सेलिब्रेट करने का मन नहीं था. एंड इस साल मुझे इस तरीके से सेलिब्रेट करने का मन था बिकॉज कॉलेज का, आई डोंट थिंक सो दैट मुझे एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत है, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि कॉलेज का लास्ट कुछ दिन था एंड ऑल्सो मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था. सो आई थॉट दैट आई शुड सेलिब्रेट इट. सो कुछ कॉमेंट्स ऐसे थे, लेट मी जस्ट रीड इट आउट. बहन ऐसे कपड़े पहनोगी तो लड़के छेड़ेंगे ही, फिर बोलती हो उनमें खराबी है, खुद को देखो क्या पहने हो. हमेशा ये कहा गया है ना कि एक लड़की दूसरी लड़की का सक्सेस कभी नहीं देख सकती है एंड कभी सपोर्ट नहीं कर सकती है. एंड मुझे बहुत कॉमन चीज़ ये दिखा कमेंट में, क्योंकि बहुत सारी लड़की कमेंट कर रही है अबाउट माय बॉडी टाइप एंड देन दे आर कमेंटिंग कि तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो तुम्हारे साथ अगर कोई खराब करता है तो वो सही है. किया ये सब कपड़े लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए पहनती है. बेसिकली दे आर स्लट शेमिंग मी फॉर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेस. और जो भी लड़कियां इस टाइप के कपड़े पहनती है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, दे जस्ट वेयर इट टू अट्रैक्ट बॉयज. सो आई डोंट नो. एंड किसी लड़के ने ये सब कमेंट नहीं किया है, सारे ऐसे ऐसे कमेंट लड़की ने ही किया है. एंड आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गर्ल बिकॉज आई नो कि बचपन से ही हमारे सोसाइटी ने ऐसे कंडीशन करके रखा है हमारे माइंड को. हमें ऐसे चार्ट पकड़ा दिया गया है कि एक लड़की अगर लड़के के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने कपड़े पहनती है, फुल कपड़ा पहनती है, घर का बात मानती है, घर पे रहती है, बेसिकली अपना लाइफ अगर किसी और के अकॉर्डिंग जीती है तो सी इज अ वेरी गुड गर्ल एंड उसको आइडियलाइज किया जाता है सोसाइटी में कि वो बहुत अच्छी है. एंड ऑन द अदर साइड अगर लड़की अपने चॉइस से अपने लाइफ को जी रही है देन सी इज एरोगेंट एंड वी ड्रेस अप बिकॉज वी फील गुड अबाउट दैट ड्रेस. बिकॉज ये हमें अच्छा फील कराता है. आई फील गुड व्हेन आई पुट ऑन मेकअप और व्हेन आई ड्रेस अप लाइक दैट. माई मेकअप एंड माई क्लोथ्स हैज नथिंग टू डू विथ boys. Depends on my mood and how I want to feel at that point of time. Okay, so मैं किसी के लिए ड्रेसअप नहीं करती, मैं खुद के लिए करती हूँ because I want to feel good at that time. मैं एक ही जगह बहुत ड्रेसअप होके बहुत अच्छे से मेकअप करके जा सकती हूँ और मैं उसी जगह पे अगर मेरा मूड अच्छा ना हो तो मैं नॉर्मल घर के कपड़ों में जा सकती हूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन माई मूड कि मैं कैसा फील करना चाहती हूँ उस टाइम में. लड़कियों को हमेशा कंट्रोल में रखा गया है बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग बिहेवियर और उनको गलत नहीं कहेंगे, हम ही को गलत कहेंगे. हाँ, सॉरी लाइट चली गई एंड आई हैव टू फिनिश इट बिकॉज थोड़ी देर में नेचुरल लाइट भी चली जाएगी एंड आई डोंट हैव आर्टिफिशियल लाइट दैट मच क्योंकि मैं अभी रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ, अपने फ्लैट में रहती नहीं हूँ. सो दीज पीपल जो ऐसे कॉमेंट करते हैं उनके हिसाब से लड़की के साथ जो कुछ भी गलत होता है उनके कपड़ों की वजह से होता है. लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए कि वो जो मन हो वो पहन सके. सो दैट इज रियली पैथेटिक. लाइक फ्रीडम इज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. लंबे टाइम तक रिस्ट्रिक्शन में रखते हो एंड उसको अपना फ्रीडम एंजॉय नहीं करने देते हो देन इट बिकम्स रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग. एंड आई एम ग्लैड कि मेरे फैमिली ने मुझे वैसा इन्वायरमेंट नहीं दिया है. Now coming to the family part of it, and is no parents will ever like such dress. Being a parent, there is a big no for my child if she wears. Okay, so ऐसे ही बहुत सारे comments हैं. I don't want to read it. So मेरे vlog में ही आपने देखा होगा कि मैं ये ड्रेस अपनी मॉम को और अपनी दादी को दिखा रही हूँ. That look how I am looking, and they are really really happy. So मेरे फैमिली इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट काइंड ऑफ फैमिली. मतलब अगर लाइफ में मुझे कोई भी पूछे ना कि आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो, आई विल से दैट माई फैमिली बिकॉज दैट इज़ अ वेरी सेफ place for me to go to fall back
एंड एवरीथिंग. अगर मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ भी हुआ, देन आई कैन गो टू माई फैमिली. माई मॉम पेरेंटिंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, शी इज रियली रियली अमेजिंग. जस्ट डोंट हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ ब्यूटिफुल शी इज. लाइक उन्होंने अपने लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्शन झेला है अपने लाइफ में, कहीं आने जाने को लेके, एंड बहुत ईव टीजिंग झेला है अपने लाइफ में. एंड बिकॉज ऑफ दैट सी नो कि वो रिस्ट्रिक्शन और जब फ्रीडम नहीं मिलता है तो कैसा फील होता है. आई एम नॉट सेइंग कि नाना नानी का पेरेंटिंग गलत था, उस टाइम का वैसा सिचुएशन था, उसके अकॉर्डिंग उनका पेरेंटिंग सही हो सकता है. जैसा उनको फील हुआ वैसा मुझे फील ना हो, एंड मुझे हर तरह का फ्रीडम मिले अपने लाइफ में डिसीजन लेने का. एंड सी ऑलवेज टॉक्स अबाउट मोरल्स एंड एथिक्स कि क्या करना चाहिए एंड क्या करना नहीं चाहिए. सी ऑलवेज गिव मी सजेशन एंड गाइडेंस, बट द लास्ट डिसीजन जो होता है वो यही बोलती है कि तुमको जो सही लगे आगे वो तुम करो. एंड नेवर फोर्स्ड मी और रिस्ट्रिक्टेड मी फॉर एनीथिंग. एंड दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि ये सोसाइटी हमेशा यही करती है कि मेरे साथ एक गलत हुआ तो मैं तुम्हारे साथ भी गलत करूँगी, एंड मेरे को भी इतना आज़ादी नहीं मिला तो तुमको मैं कैसे इतना आज़ादी दे दूँ. ये जो प्रोसेस होता है ना, थॉट प्रोसेस, ऐसे क्या होता है ना, चेन कभी ब्रेक ही नहीं होता है. मेरे पापा मम्मी अपने मोरल वैल्यूज जो उन्होंने मुझे दिया है उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो मेरे को लाइफ में आगे गाइड करेगा, एंड आई विल नॉट टेक अ रॉन्ग डिसीजन. माई ब्रदर इज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. जब ये सब कॉमेंट्स आ रहे थे एंड मैं थोड़ा बहुत कॉमेंट्स पढ़ रही थी, सो ही वॉज जस्ट टेलिंग दैट इग्नोर ऑल दैट कॉमेंट्स, इट डजेंट मीन. एंड आई डोंट बिलीव इन रिस्ट्रिक्शन वाला पेरेंटिंग, बिकॉज अगर आप ओनरशिप दिखाओगे ना अपने बच्चे पे तो आपका बच्चा आपके सामने कुछ और रहेगा और आपके पीठ पीछे कुछ और रहेगा. क्योंकि जब आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्या है वो, एंड उसको एक्सप्लोर करने का क्यूरियोसिटी और ज़्यादा हो जाता है. तो आपके सामने तो वो आपके तरह से बन के रहेगा एकदम. सो आई थिंक कि वो पेरेंटिंग कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक्चुअली में कि आपका बच्चा कर क्या रहा है. आपको उसके लाइफ में कुछ भी नहीं पता है, आप उसके लाइफ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी दैट काइंड ऑफ safe space. I can say that I have a safe space where I can go. Now I know कि बोलना और मेकअप करना साथ में कितना ज़्यादा टफ है. So let me just finish my eye look and then I'll come back. Finish my eye makeup with little bit of glitter and smoky eye, black brown smoky eye. I'm going to apply mascara right now. Hats off to all those creators who do different kind of job at the same time. But yes, I am not an expert. मुझे बहुत सारे comment आए suggestion that you should wear pink inner with a pink dress. मुझे वो suggestion काफ़ी अच्छा लगा, and मुझे लगा कि मैंने क्यों नहीं पहले ये सोचा. So this time I tried it and I loved it. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बर्थडे के टाइम ये दिमाग में आना चाहिए, बट आई वॉज टू एक्साइटेड अबाउट दिस ड्रेस कि मैंने उसको ऐसे ध्यान नहीं दिया उस पर. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मेकअप और फैशन और स्पीकिंग. आई स्ट्रगल अ लॉट. मेरे स्कूल से सिर्फ एक ही कंप्लेन आता था कि मैं बोलती नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी लाइक शाय काइंड ऑफ पर्सन. मेरा पुराना वीडियोज़ देखोगे तब आपको पता चलेगा दैट आई रियली यूज टू स्ट्रगल विथ माई स्पीकिंग. मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, एंड कैमरे के सामने बोलना इज़ अ टफ जॉब. की लाइफ का अपना अपना स्ट्रगल होता है, एंड कुछ लोग को बस 60 सेकंड का वीडियो दिखता है एंड दे जस्ट कमेंट देयर ओपिनियन. एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ. मैं अपने पापा मम्मी के साथ नहीं रहती, मैं पुणे में रहती हूँ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. सो मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है, उसके साथ कंटेंट क्रिएशन, कॉलेज मैनेज करना. इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, एंड सब कोई अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है. मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट की थी तभी मुझे पता था कि ऐसे कमेंट्स आएंगे एंड आई हैव टू डील विथ इट, और मुझे सच में कोई असर नहीं पड़ता इस सब चीज़ का. मैंने 2020 से बहुत कुछ देखा है लाइफ में, एंड बहुत कुछ से बाहर आई हूँ मैं खुद से, विच यू विल नो इवेंचुअली. जब मैं सेफ फील करूंगी यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, देन आई विल से अबाउट एवरीथिंग. एवरीवन इज गोइंग थ्रू सम और द अदर थिंग्स, एंड ये लोग वही होते हैं जो उनके लाइफ में खुद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वो होता है ना कि अपना लाइफ नहीं देख के दूसरे के लाइफ में कमेंट करना ज़्यादा ईजी होता है जजमेंट पास करना. एंड दे थिंक कि सोशल मीडिया ही तो है, कुछ भी कमेंट करके डाल दो, क्या ही फर्क पड़ता है. उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. एंड लिटरली सामने वाला भी अब ऐसा हो गया ढीठ जैसा कि अब तुम बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो कि तुम्हारे थॉट का कोई वैल्यू नहीं है. सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट करके इनको लगता है कि ये सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं एंड सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. कि कोई भी सोशल मीडिया पे आता होगा तो ये सोच के ही आता होगा दैट हेट कमेंट्स तो आएंगे एंड वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट. एंड इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लोग कहीं भी आके ऐसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एड्रेस दीज काइंड ऑफ थिंग.
About this dress, I love this dress and that's why I'm wearing this dress right now in front of you. I'm going to use this Wet n Wild ka Give Me Mocha shade. It's amazing. Like, this shade is really good for medium to lighter skin. I don't know about the dark skin tone, but it's really good. Let me just apply. It's very lightweight and it is a daily wear nude lipstick. बहुत ही amazing है. So if you are a medium to lighter skin tone, you can definitely try it. Amazing. I'm going to add little bit of pink because I am wearing pink. So थोड़ा सा pink add करूँगी from this shade Dinah from Nykaa. This is a Nykaa mini lipstick. So this is my complete look. थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक था जो मैंने करेक्ट कर लिया and it is difficult to do both the things at the same time. So as I said कि मैंने पॉजिटिव नोट से स्टार्ट किया था, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव कमेंट से स्टार्ट किया था ये वीडियो. सो आई एम गोइंग टू एंड इट विथ पॉजिटिव कमेंट as well. Pooja Negi commented, your dress is really very beautiful. Thank you so much for commenting and supporting me. I cannot pronounce the name. I will give the screenshot right here. Sorry for the bad lighting condition, but he or she is saying the irony of us Indians is on another level. If there was a foreigner woman instead of her, the one who are spilling gyan about Indian culture would have been commenting, OMG you slay queen and all. If her family is allowing her to wear these dress, then what it has to do with you? Thank you so much for supporting and understanding. Monica commented, उसकी body उसकी choice, जिसको पसंद नहीं है वो मत देखो, हर जगह negative comments देना जरूरी नहीं है. Didi Jan has commented, I am astonished by the comment that people are posting about her clothes, ethics, etc. Everyone have different perspective or opinions, but that doesn't give you right to criticize her freedom of choice and even slut shame her. The mature adult who knows what's good and what's bad for her. If you don't like it, just don't buy it or wear it. At least we can be a little respectful towards others. She was astonished by the comment, but as I said, I was not surprised, but she is exactly saying what I have said in this video. Let me read one last comment. Anjika Sharma said, it's her life, she gets to decide what she wears. You guys are just being insecure about yourself, so thank you for understanding. Avisha Yadav commented, why do people gotta be like I wouldn't be allowed to wear this, like no one cares. Many look for these types of dresses for their birthday and she helped many reviewing this dress. Why spread negativity on her short? Just because you can't wear this? Question mark. Scroll and move on. Thank you so much for understanding. Thank you all for supporting. That's it for this video. I hope you got to know about my thought process through this video, and that was the motive of this video. I just wanted to discuss about these topics. Yeah, I'm planning lots of content, so if you haven't subscribed yet, please do subscribe, and I will see you very soon in my next video. Till then, bye bye.